السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ آج یوم ولادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کے موقع پر سچ ٹی وی کی جانب سے اہل اسلام کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ چند گز زمین کا ٹکڑا قیمتی جانیں لے گیا۔ پشاور میں بچوں اور خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو گھر میں گھس کر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور کے علاقے چمکنی میں 7 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے۔ وجہ تنازع بنا زمین کا ٹکڑا۔ مسلح افراد گھر میں گھسے اور اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ خواتین کو دیکھا نہ ہی معصوم بچوں کا پاس لحاظ رکھا، جو آیا اسے بھون ڈالا۔ اندوناک واقعہ نوائی علاقے چوہا گجر میں ابراہیمی نامی شخص کے گھر میں پیش آیا۔ مقتولین میں ابراہیم خان کے 3 بیٹے، اہلیہ، بھائی اور بھابھی شامل ہیں۔ وقوع کے وقت ابراہیم گھر پر موجود نہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملی تو پولیس حرکت میں آئی اور قاتلوں کی تلاش شروع کر دی۔ 4 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ ادھر وارسک روڈ پر اسکول کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں گولیاں لگنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لیا میں واقع MM روڈ پر تیز رفتار ٹرالر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار 3 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ اسکول جاتے ہوئے پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوانوں میں 2 بھائی اور ایک ان کا کزن شامل ہے۔ حادثہ تیز رفتاری اور اوورٹیکنگ کے باعث پیش آیا۔ واقعے کے بعد ڈرائیور جائے حادثے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیا پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے ذمہ دار مفرور ٹریلر ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ خانپور کے نوائی علاقے سورج گلی میں کریش پلانٹ پر کام کے دوران پہاڑی تودا گر گیا۔ ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق کرشن پلانٹ کے لیے بلاسٹنگ کر کے پہاڑ سے پتھر نکالے جا رہے تھے اور بلاسٹنگ کے باعث پہاڑ کھوکھلا ہو چکا تھا، جو اچانک سے رک گیا۔ کرشن پلانٹ کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب کے شہر جنابالہ میں شوہر نے خلا مانگنے پر کانسٹیبل بیوی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ نے شوہر سے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ مقدمے کی رنجش پر ملزم نے بیوی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ خطیر رقم خرچ ہونے کے باوجود تاحال کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں نصب سرکاری واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت ممکن نہ ہو سکے۔ پلانٹس کی طویل بندش سے شہر میں صاف پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکر۔ وادی کوئٹہ میں یوں تو عوام گزشتہ کئی سالوں سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں، لیکن سابقہ دور حکومت میں عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں خطیر رقم کی لاگت سے جو واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے تھے، ان میں اکثر پلانٹس متعلقہ حکام کی عدم توجہی اور بے حسی کی وجہ سے خراب یا بند پڑے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس کی بندش سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے اور شہر میں صاف پانی دن بدن ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے پلانٹ، پانی نہیں ہے، پانی برما بھی صحیح ہے، واٹر پلانٹ بند پڑا ہوا ہے، 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے، نہ ملازم آ رہا ہے، نہ کوئی افسر آ رہا ہے۔ 10 دن بھی نہیں چلا، بس ختم ہو گیا۔ ابھی نہ پانی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی کام والا ہے۔ کیا آتے ہیں برمے بھی بند ہوتے ہیں، برمے کا بھی کوئی ایسا حال ہے۔ پیچھے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تالاب بنا ہوا ہے۔ واٹر پلانٹس کی بندش کے خلاف کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں شہری سراپا احتجاج بھی ہیں اور اس اہم مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو کئی بار تحریری طور پر بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ سندھ کے شہر وگن میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ نادر علی کی رپورٹ۔ 60 سے 70 ہزار نفوس پر مشتمل سندھ کے شہر وگن میں صاف پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ سالوں قبل لاکھوں روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی واٹر سپلائی اسکیم ناکارہ ہو کر تباہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید گرمی میں صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے ہیں۔ اس دور میں نہ وہ واٹر سپلا رہے ہیں، نہ وگن کے شہریوں کو وہ پانی مل رہا ہے پینے کے لیے۔ ٹاؤن وگن میں اتنا فقدان ہو گیا ہے میٹھے پانی پینے کے لیے کہ عوام بہت پریشان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پیچھے یہ روزمرہ لا کے گدے گاڑیوں پہ ایسے ہی یہ لوگ گیلنے لے کے آتے ہیں۔ جو کام والے بندے ہیں وہ صبح کام پہ جائیں یا پانی بھرنے کے لیے آئیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پانی بھی پیسوں کے عوض خریدنے پر مجبور ہے۔ جو ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے اس سارے انسان ذات سے پانی چھین رہے ہیں،
پانی کی بہت بڑی تکلیف ہے. پانی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. میٹھا پانی ہمارے علاقے میں نہیں ہے. جو کینالوں کے اوپر جو ہینڈ پائپ لگے ہوتے ہیں اس سے یہ پانی بھر کے ہم گھر جاتے ہیں. تب تک پریشانی ہوتی ہے جب تک پانی ہم گھر میں نہیں. اپنے روزگار پہ جاتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے, پانی بھرنا ہے. ویگن کے شہریوں نے سندھ حکومت سے فوری طور پر صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. جوہی کے نواحی علاقے میں صاف پانی نایاب ہو گیا. شہری آلودہ پانی پینے کے باعث مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں. آچر مستوئی کی رپورٹ. کانچوں کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. دور جدید میں بھی کانچوں کے مکین 100 سال پرانے دور جیسی زندگی گزارنے لگے ہیں. جوہی کے علاقے چینی میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا, جس کی وجہ سے شہری گائیں بھینسوں نہانے والے تالابوں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں. گندا پانی پینے کی وجہ سے شہری گیسٹرو, ڈائریا, ملیریا اور پیٹ کے خطرناک امراض کا شکار ہونے لگے ہیں. ہم یہاں پہ تالابوں کا جو گندا پانی ہے وہ پی رہے ہیں, اس لیے بیماروں میں مبتلا ہو گئے ہیں. شہری کہتے ہیں منتخب نمائندوں کی طرف سے پینے کے صاف پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی سہولیات مہیا نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً تالابوں کا گندا پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سندھ والے جو ہے ناجائزی کر رہے ہیں سندھوں کے, تو ابھی آپ نوٹس لیں پلیز. ابھی پانی کا ایشو ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ پبلک ہیلتھ کی بالا آفیسروں سے پینے کے صاف پانی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے. محمد آچر مستوئی, سچ ٹی وی, جوہی. بورے والا میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ زمینداروں نے ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کر دیے. رپورٹ کریں گے کریم سیفی. آئے روز بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اور لوڈ شیڈنگ کے ستائش ذمہ داروں نے بورے والا اور گرد و نواح میں اپنے ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کر دیے. ان ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں نہری پانی نہ ہونے کے برابر ہے. سولر لگانے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ جو تقریباً 1 مربع ہماری زمین ہے, جو نہری پانی ہے اس کی کھپت سے وہ سیراب نہیں ہوتا تھا 1 مربع. تو پہلا فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سولر سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ 1 مربع جو ہم کاشت کر رہے ہیں مکمل کا مکمل. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. دوسری جانب مہنگائی نے تو ذمہ دار سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے. بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں برداشت سے باہر ہیں, اس لیے ان ٹیوب ویل کو سولر سسٹم پر منتقل کیا ہے. اب ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بیچ کر اچھی آمدن بھی کما رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی, سچ نیوز, بورے والا. دادو کے سب سے بڑے سرکاری اسکول کی بجلی 3 دن سے معطل ہونے کی وجہ سے طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. شدید گرمی میں بجلی بندش کے باعث 1000 سے زائد طلباء کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. اسکول کے طلباء اور اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا. شعیب تہیم کی رپورٹ. دادو شہر کے سب سے بڑے سرکاری پائلٹ ہائی اسکول کا ٹرانسفارم خراب ہونے کے باعث 3 دن سے اسکول میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. شدید گرمی میں بجلی کی بندش کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے لگی ہیں. بجلی کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے طلباء اور اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. 3 دن ہو گئے, 3 دنوں سے لائٹ نہیں آ رہی ہے, ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. ہماری اسٹڈی میں بھی کافی پیچھے ہو گئے. گرمی کی وجہ سے ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں 3 دنوں سے لائٹ نہیں ہے. یہاں پہ بہت پریشانی ہے, ہمیں اسٹڈی کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں پہ گرمی بہت ہے, پانی بھی نہیں ہے. اور یہاں جیسے ہی ہم یہاں آ رہے ہیں اسکول میں تو بہت گرمی ہے, زیادہ گرمی ہے, پانی بھی نہیں ہے. اس موقع پر اسکول کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ پہلے سے ہی کورونا کے باعث تعلیم کا بہت حرج ہو چکا. اب بجلی بندش کی وجہ سے 1000 سے زائد طلباء کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. 3 دن ہوئے لائٹ نہیں آ رہی, ٹرانسفارمر خراب ہے. یہاں بچے پہلے ہی کورونا سے اسکول بند تھے. بہت گرمی ہے. یہ پانی کے جو ٹانکیز ہیں وہ بھی نہیں بھر رہی, یہ موٹر نہیں چل رہے, یہ بچے گرمی میں تڑپ رہے ہیں. یہاں ہمارے پاس اٹینڈنس جو ہے وہ تقریباً 1000 تک ہے. یہ بچے اتنی گرمی میں, شدید گرمی میں, کووڈ کا زمانہ, دوسرا اتنا ہمارا لاس ہو چکا ہے ایجوکیشن کا. پھر یہ لوڈ شیڈنگ ہو تبھی صحیح ہے. یہ تو ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹرانسفارمر کی مرمت نہ کرنے کے خلاف اسکول کے طلباء اور اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے معاملے کا سختی سے نوٹس لے کر فوری ٹرانسفارمر کی مرمت کرا کے بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شعیب تھیم, سچ ٹی وی, دادو. عارف والا اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. شہر میں 6 سے 7 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن چکا, جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں. نذیر احمد کھرل کی رپورٹ. پنجاب کے پسماندہ علاقے تحصیل عارف والا اور آس پاس کے کئی دیہاتوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا. کئی علاقوں میں بجلی کی ٹرپنگ نے لوگوں کے گھر کا سامان بھی جلا کے رکھ دیا. لوڈ شیڈنگ اور بلوں میں پسی ہوئی عوام کا کہنا ہے بجلی نہیں آ رہی, عوام اتنی پریشان ہے کہ جب بجلی آ رہی ہے تو
बिजली सड़ जाती है, फ्रिजां सड़ जांदियां ने, आवाम बहुत परेशान है। तब्दीली सरकार ने अवाम के सामने 22 साल जिस बात का रोना रोया, आज वही कुछ खुद कर रही है। हुकूमत वक्त से अवाम ने मुतालबा किया है कि गैर इलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर कंट्रोल न किया गया तो लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले तब्दीली सरकार ने जो अवाम को सबज बाग दिखाए वो अब पूरे करे। मजीद अवाम का कहना है कि अगर लोड शेडिंग को कंट्रोल ना किया गया तो अवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। फैजाबाद में बिजली चोरों की शामत आ गई। जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कराए गए और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। जफर इकबाल की रिपोर्ट। फैजाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की रोशनी में गैपको इंतजामिया की जानब से जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 3 दर्जन के करीब बिजली चोरों को भारी जुर्माने और मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। इसी हवाले से SDO सब डिवीजन नंबर 3 हामिद जुमान तारड़ और SDO सब डिवीजन नंबर 4 और नूर लैंडमैन ने बताया कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक गैपको चीफ एग्जीक्यूटिव और एक्शन फैजाबाद की हदायत के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ बला खौफ खतर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान सब डिवीजन नंबर 3 हफ्जाबाद के इलाका घड़ियावान खानपुरा से 5 मीटर बिजली चोर पकड़े। में सब डिवीजन नंबर 4 गैपको हफ्जाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दौरान चेकिंग 15 अदद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जो कि डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे, जिनके खिलाफ एक्शन लेकर उनके खिलाफ FIR मुख्तलिफ थानों में भिजवा दी गई है और हजारों यूनिट के डिटेक्शन बिल उनको चार्ज किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ जिन इलाकों में कार्रवाई की गई उनमें सब डिवीजन नंबर 2, सब डिवीजन नंबर 3 और सब डिवीजन नंबर 4 में कार्रवाई की गई। लैंड सुपरिटेंडेंट अब्दुल रज़ाक मुगल ने गुफिया इतला पर अपनी टीम के हमरा जिन इलाकों में कार्रवाई की उनमें मोहल्ला खानपुरा, घड़ियावान, छन्नी करीमदाद और वली टाउन समेत जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। मोहल्ला खानपुर में जदीद तरीके से बिजली चोरी करते थे, जिनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। वापडा इंतजामिया का कहना है कि कौम की बिजली चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। रेमियर खान के इलाका इकबाल टाउन में 7 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हसन रहमानी की रिपोर्ट। रहीम यार खान के इलाके इकबाल टाउन में गुज़िश्ता 7 रोज से बिजली बंद होने पर इलाका मकीनों ने वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और वापडा काम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि 7 रोज से इकबाल टाउन में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। घरों में पानी तक नहीं, गर्मी से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। वापडा को शिकायत करने के बावजूद बिजली को बहाल नहीं किया जा रहा। 7 दिन से बिजली नहीं है। वापडा से हमारी अपील है कि मेहरबानी करें और हमारा ट्रांसफार्मर ले आएं और बिजली हमारी तरफ आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी। रहीम यार खान इकबाल टाउन में हम 105 चक में रह रहे हैं। हमारी 7 दिन से बिजली नहीं है। हमारी मस्जिदों में पानी नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, हमारे बाथरूम में पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? पुलिस आती है, पुलिस हमें धमकी देती है कि हम सारे को उठा के जेल में फेंक देंगे। हमें अपने इंसाफ चाहिए। जबकि इस बारे वापडा काम का कहना है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम जारी है, जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि पुलिस थाना एयरपोर्ट भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। वापडा की गफलत हर हद पार कर गई। बिया चन्नू में तूफानी बारिश के बायस बिजली के पोल गिरे, 3 माह गुजर गए मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडिया। मियां चन्नू वापडा हुकाम ने बेहिसी की इंतहा कर दी। तूफानी बारिश से गिरे हुए इन बिजली के पोलों को 3 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन वापडा सब डिवीजन मियां चन्नू के अफसरान खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। मौसम खराब होने की सूरत में ये बिजली के पोल किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अहलियान इलाका ने वापडा हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है, वापडा वाले 903-4 बार आख चुके हैं, किसी ने साड़ी गल सुनी। ये जे कोई इत्थे हादसा हो गया तो इहदा जिम्मेदार कौन हो सी? ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? जी ਅਸੀਂ बड़ी अर्ज कर रहे हैं कि खंबे डिगे पे ने, इथों इन्हां दा कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा। वापडा वाले ने दफ्तर गए ने, उन्होंने भी कोई नहीं सुनी कि लिहाजा मेहरबानी करके ते साडे खंबिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। वापडा वाले ਨੂੰ 3-4 दफा आ चुके हैं ते कोई बंदा मार गया, इतने कोई हादसा हो गया तो वो कौन जिम्मेवार होगा? हाई वोल्टेज ये बिजली की तारें जमीन से 6 फुट के फासले पर हैं, जो कि वापडा हुकाम की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है। अहलियान इलाका ने मैप को टीम से अपील करते हुए कहा है कि
इन गिरे हुए बिजली पोलों का नोटिस ले ताकि हम किसी बड़े हादसे से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ जवेद इकबाल चांडियाट, विजुअल ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, मियां चन्नू। गुज़िश्ता रोज कोट छुट्टा और उसके मज़ाफात पे होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस बिजली के पोल, मकानात और मुतादिद दरख्त जमी पोस हो गए। अली रजा हमदानी की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज तहसील कोटछुटा और उसके मुज़ाफात के इलाके माना हमदानी, नोतक में मीर, चोटी ज़ेरीन, आलीवाला में तेज और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर फलाप हो गया। माना हमदानी में 80 लाख रुपए की खतीर रकम से तैयार करदा लिंक कंक्रीट रोड भी नाकिस हिकमत अमली की वजह से तैयार होने वाला रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसी तरह मुज़ाफात के इलाकों में गलियां बारिश के पानी से भर गई। उधर दूसरी जानब तेज हवाओं ने जहां मकानात की दीवारें और छतें गिरा दी, वहीं बिजली के पोल भी तेज हवा की जद में आकर गिर गए, जबकि तेज हवाओं की वजह से नाला धिंगाना पर मौजूद मुतअद्दिद दरख्त भी गिरकर जमीन बोस हो गए। ताहम तहसील कोटछुट्टा में तेज हवाओं की वजह से गिरने वाले मकानात, दरख्तों और बिजली के पोल से किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज बारिश के बायस जहां बिजली के पोल गिर गए, वहीं मुतअद्दिद दरख्त भी गिरकर जमीन बोस हो गए। महकमा जंगलात को चाहिए कि दरख्तों को बर वक्त अपनी तहवील में ले। अली रजा हमदानी, सच टीवी, कोटछुट्टा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रोड को दोरोया करने के लिए मुजफ्फरगढ़ के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जीटी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से रोड को दोरोया करने का मुतालबा किया। सबीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर कातिल रोड पर रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात और उनमें दर्जनों अमवात से तंग हाल खवातीन मर्दों के हमरा सड़कों पर निकल आईं। दर्जनों खवातीन ने मर्दों के हमरा जीटी रोड पर अमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने रोड को डबल करो के नारे लगाए और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक इस कातिल रोड को फिल फौर डबल किया जाए। हम अब मजीद लाशें नहीं उठा सकते और हम हुकूमत पंजाब को ये बताना चाहते हैं कि हम अनकरीब कम व बेश 10,000 बंदों के साथ आएंगे और पंजाब असेंबली के सामने हम धरना भी देंगे। मुजाहिरीन ने कहा कातिल रोड पर होने वाले हादसात से वो कीमती जानें गंवा चुके हैं और रोड से लाशें उठा कर थक चुके हैं। रोड को डबल किया जाए मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक। जो इधर के MNA MPAs हैं उनको चाहिए कि वो जाके अवाम की हक की बात करें और इस कातिल रोड को डबल कराने की कोशिश करें। यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इंसानियत होनी चाहिए और तमाम MNA MPAs को चाहिए कि वो इस जो कातिल रोड को है डबल करें। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर रोड को डबल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। हरीपुर के दूर अफ्तादा इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अरबों रुपए मालियत के मंसूबे शुरू कर दिए गए। सड़कों की तामीर, पानी और बिजली गैस की स्कीम, स्कूलों के अपग्रेडेशन और तामीर का काम जारी है। नईमुल्लाह खान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर उमर अयूब खान और सूबाई वजीर अकबर अयूब खान ने हरीपुर के पसमानदा इलाका स्वाबी मेरा में 9 अरब रुपए की खती रकम के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें रोड, गैस और बिजली के मंसूबे शामिल हैं। ये इलाका पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक पसमानदगी का शिकार है। लोगों ने अपने इलाके में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। मेरे को स्कीमा दी लिस्ट है, ये तकरीबन 9 अरब रुपए दियां बनदियां ने गैस, बिजली और बाकी स्कीमा मिला के 900 करोड़ रुपए दियां। आज बुजुर्गों दोस्तों, जेड़े रोड, जेड़े बिजली फीडर और सुई गैस का इफ्तिताह होया 2.5 अरब रुपया दा, ये सारे तुसी इफ्तिताह इकट्ठे करो ते 8-9 अरब रुपए बनते ने। बुजुर्गों दोस्तों, 8-9 अरब रुपया का मतलब है 800-900 करोड़ रुपया। सारी टीम दिन रात हरीपुर लगी दी है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदों को खराज तहसीन पेश किया। मुर्गी के गोश्त की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। कमालिया में ब्रायलर गोश्त की कीमत 330 रुपए से भी तजावुज कर गई। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में महंगाई का तूफान न थम सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत में आए रोज इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ओपन मार्केट में आज का रेट 330 रुपए फी किलो है। आम आदमी के लिए गोश्त खरीदना खासा मुश्किल हो चुका है। इस मौका पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, चिकन की कीमतों में दिन ब दिन मजीद इजाफा हो रहा है, जो आम के लिए बहुत शदीद मुश्किलात हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि चिकन की कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। चिकन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे कीमतों को कंट्रोल करे और जो है ना अपना महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि जो है ना गरीब अवाम आसानी के साथ
कम से कम चिकन तो खरीद सके, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए खरीदारी का असूल मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इंतजामिया ऐसे नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में बेबस दिखाई दे रही है। चिकन की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से चिकन की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साची न्यूज टीवी, कमालिया। मानावाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुरनोश की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मियां शेर जरगर की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी महंगाई का जिन बोतल से बेकाबू हो गया। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, घी और तमाम एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मानावाला के शहरियों का कहना है कि बजट 2021 भी गरीब आदमी के लिए जानलेवा साबित हुआ। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते थे, तो वहीं महंगाई ने मजदूर आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, जिस पर मानावाला के शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, अब तो ये आसमानों से बातें कर रही हैं। घी, दाल, चावल वगैरह पहले तो ये गरीब आदमी की पहुंच में है थे, पर ये अब नहीं रहे। जब का ये बजट पास हुआ है ना, इसका गरीब आदमी कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारी वजीर आज़म इमरान खान से अपील है कि खुदारा इन चीजों के रेट कम किए जाएं, जिससे गरीब आदमी का चूल्हा जल सके। दूसरी जानब दुकानदार हजरात का कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई से हमारे कारोबार बंद होकर रह गए हैं, जिस पर मानावाला के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बढ़ती हुई महंगाई में कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी भी एशिया खुर्दनोश को आसानी से खरीद सके। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। टोबा टेक्सिंग के एहसास कफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। इमदादी रकम के उसूल के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग हुकूमत की जानब से बेसहारा गरीब अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत तहसील म्यूनसिपल कमेटी में सेंटर बनाया गया। सेंटर में अमदाद के हसूल के लिए अलग सुबह शहरियों की कतारें लग जाती हैं। सेंटर में काउंटर कम होने की वजह से ज्यादातर अफराद घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। सेंटर में ना तो साए का बंदोबस्त किया गया है और न ही पीने का साफ पानी दस्तयाब है। यहाँ आने वाले ज्यादातर अफराद पानी न मिलने का शिकवा करते हैं। पानी रोड से जा रहे, उधरों धक्के मिल रहे, इधर आ रहे हैं, इधरों धक्के मिल रहे, उधर जा रहे हैं। आज सुबह बच्ची मेरी भुखी है, पानी नहीं मिल रहा सानू। असं इतने आ रहे, कोई इधरों बंदे धिक्के मार दिया, कोई इधर मार दिया जी। उस तो बाद मेरे घर दे प्यासे ऊपर डिग रहे हैं जी पार्किंग दे। हम लोग सुबह 9 बजे के आए हैं, अभी तक कोई बात नहीं हमारी सुन रहे हैं। बहुत जलील हो रहे हैं, ना कोई इधर पानी का इंतजाम है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेंटर में काउंटर की तादाद को बढ़ाया जाए और पीने के साफ पानी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। हारूनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद तहसील अस्पताल में सहूलियात का फुकदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पीने के साफ पानी की कमी, बाथरूम्स की नागजीर हालत, अदवायात की कमी और डॉक्टरों की खाली नशिस्तें बड़े मसाइल हैं। इमरजेंसी में मुखीर हजरात की तरफ से अतिया की गई अदवायात से ही काम चलाया जा रहा है और इमरजेंसी सहूलियात फुकदान के बायस इमरजेंसी डॉक्टर हजरात भी इमरजेंसी केसेज को ट्रीटमेंट की बजाय बहावलपुर या लाहौर रेफर करने में ही आफियत समझते हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया का मौकफ है। हुकूमत की तरफ से अदवायात के बजट में कमी से अदवायात की अक्सर किल्लत रहती है। डॉक्टरों की अक्सर नशिस्तें खाली हैं, जिसकी वजह से मौजूद डॉक्टरों के पास बेइंतहा रश होता है, जिससे अक्सर मरीज चेकअप से महरूम रह जाते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। एमएस तहसील अस्पताल का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद हम आने वाले मरीजों को बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशा रहते हैं। अवामुन नास ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि लाखों की आबादी को सहूलत फराम करने वाले तहसील के वाहिद 24 घंटे इमरजेंसी अस्पताल को सहूलियत फराम की जाए, डॉक्टर और अमले की कमी को भी पूरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। कोटदू के इलाके पीरजोगी मोड़ पर आवारा कुत्तों का राज है। कुत्तों के काटने के मुतादिद वाकयात होने के बावजूद म्युनिसिपल इंतजामिया को होश न आया। शहरी खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटदू के इलाके पीरजगी मोड़ पर आवारा कुत्तों का राज है। बच्चे खौफ के साए में स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बच्चों और जानवरों को कुत्तों के काटने के मुतद्दिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। ये हमारे पीरजगी मोड़ चौक नंबर 18 कब्रिस्तान और आबाई इलाकों में बहुत ज्यादा कुत्तों की भरमार है। इनकी वजह से वहाँ बहुत परेशान है। इन कुत्तों की वजह से हमारे इलाके में 2 जानवर, एक इंसान की डेथ हो गई है। उनकी वैक्सीन हमें इस इलाके में नहीं मिली। अगर
तो कुत्ते किसी को काट लेते हैं, वो वैक्सीन हमें लिया और मल्तान डेरा गाजी खान जाकर मिलती है। मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल इंतजामिया को शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हैं। की वजह से यहाँ से बहुत से मसाइल हैं, खास तौर जो बच्चे हैं छोटे स्कूल जाते हुए अक्सर उनको काटने के वाक़यात हैं। जो मुसाफिर यहाँ पर जो आउट ऑफ सिटी से यहाँ आते हैं उनको जख्मी करने के वाक़यात हैं। आवारा कुत्ते की वजह से मसाइल यहाँ इतने हैं कि आप सुबह और शाम कब्रिस्तान में जाएं तो आवारा कुत्तों की वजह से कब्रिस्तान में कब्रों को बेहरमती की जाती है। कुत्ते काटने की वैक्सीन भी अस्पताल में मौजूद नहीं होती, इसलिए मुतासरा शख्स को लिया डेरा गाजी खां या मुल्तान लेकर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए डीसीओ मुजफ्फरगढ़ से अपील की है कि इलाके में कुत्ता मार मुहिम चलवाई जाए ताकि शहरी बिला खौफ जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काजमी, सच न्यूज, कोटदू। मुल्तान में जिले इंतजामिया और PHA की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी मुहिम जारी है। अस्पतालों, बुनियादी सेहत मराकज और स्कूल्स में भी शजरकारी की जा रही है। अहमद काशिफ की रिपोर्ट। डिवीजनल इंतजामिया मुल्तान और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। कम्प्रीहेंसिव स्कूल रोड पर भी पलकन के 100 तैयार दरख्त लगाए गए। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि मुल्तान का दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक कम करना उनकी ख्वाहिश है, जिसके लिए वो तैयार दरख्तों की शजरकारी करवा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्तान डिवीजन में बड़े पैमाने पर शजरकारी जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोकल इजनास के बड़े तैयार दरख्त लगवाकर इंसानी सेहत के लिए मुजरे अजनास के दरख्तों को बतदरीज खत्म किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत में 1.5 लाख से जायद पौधे लगाए जा चुके हैं। इस सिलसिले में PHA को लोकल गवर्नमेंट की तरफ से 23 लाख से जायद की रकम भी अदा कर दी गई है। इस मौके पर चेयरमैन PHA एजाज अहमद जंजुआ का कहना था कि पिछली हुकूमतों की जानिब से शजरकारी पर तवज्जो नहीं दी गई। वतन अजीज में ग्रीन कवर में इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहरी अपने घर और दफ्तर में शजरकारी करके हुकूमत का साथ दें, क्योंकि माहौलियाती तगय्युर हम सब का मसला है। हर बशर 2 शजर सिर्फ एक मुहिम नहीं मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको बढ़ चढ़ कर इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में यूथ ऑफ वजीरिस्तान की जानिब से सुखैल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सलमान खान की रिपोर्ट। टीबी सहूलियात से महरूम शुमाली वजीरिस्तान मिरली के हसोहेल अस्पताल में यूथ ऑफ वजीरिस्तान की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का मकसद महकमा सेहत का इलाके में हेल्थ सहूलियात की तवज्जो दिलाना है। फ्री मेडिकल कैंप में शहरियों को फ्री चेकअप कराने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। ये फ्री मेडिकल कैंप यूथ ऑफ वजीरिस्तान के ज़ेर निगरानी मुनक़द की गई है। इसका मकसद ये है कि गरीब आदमी को उसके घर के करीब, उसके दहलीज पे उसके ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन मिल जाए। और हमने इधर बेहतरीन डॉक्टर को जो है ना इधर अपने साथ लाया है। एक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पे, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हुआ करता है। यहाँ पे सुहेल सिविल अस्पताल में यूथ ऑफ वजीरिस्तान के ज़ेर निगरानी हमने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। आज दूसरा दिन था। रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 250-300 बीमारों का चेकअप होता है। यहाँ पे हमारा एक मसला ये भी है कि अस्पताल पे खर्चा हुआ है, बिल्डिंग बनी है, लेकिन यहाँ पे न कोई स्टाफ है, न कोई मतलब हेल्थ की फैसिलिटी है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो अस्पताल है इसको जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए और यहाँ पे जो आवाम है उसको हेल्थ की फैसिलिटी फराहम किया जाए। इस मौके पर अहले इलाके ने महकमा सेहत से शुमाली वजीरिस्तान के अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच TV, शुमाली वजीरिस्तान। आरिफ वाला के बागों में लगे आम पक कर तैयार हो चुके हैं। बच्चों बड़ों सबके पसंदीदा आम किन मराहल से गुजरकर मार्केट तक पहुंचते हैं, जानते हैं जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट में। मौसम गर्मा का लज्जत और कुदरती मिठास से भरपूर फल आम, जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, पककर तैयार हो चुका है। आम को दरख्तों से उतारकर मसाला लगाकर लकड़ी के डिब्बों में रखा जाता है। 3 से 4 रोज के बाद आम जब मुकम्मल पककर तैयार हो जाता है तो उसे फरोख्त के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। साढ़े कोल जी 4 किस्म का आम है, रटोर, चौंसा, दुसहरी और लंगड़ा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 4 दिन ਇੱਥੇ ਰੱਖਨੇ ਆ और 5वें दिन ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ मंडी फरोख्त कर देंगे। मार्केट में आम महंगा होने की वजह से शहरी सस्ते आम खरीदने के लिए बागात का रुख करते हैं।
यहाँ जो आम है एक तो फ्रेश मिल जाता है, ताज़ा मिल जाता है, दूसरा इसकी खास बात ये है कि बाजार की निस्बत इधर रेट की में जो है वो वाजिया बहुत कमी है। आम का फल जायके में बेमिसाल होने के साथ साथ तिब्बी लिहाज से भी मुफीद है, इसीलिए तो हर उम्र के अफराद इसे खाना पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। गर्मी के मौसम में सनग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी है और जरूरत भी। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए दरागाजी खान के शहरियों ने सनग्लासेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान चश्मा इंसान को खूबसूरत और जाज़िब नजर बनाता है। वहाँ पर चश्मा आंखों को धूप और जरासीम से भी बचाता है। गर्मी में चश्मा बेचने वाले स्टॉल पर खूबसूरत दिलफरेब चश्मे सजा देते हैं। चश्मा खरीदने आए और गर्मी ज्यादा है तो आईने के इस्तेमाल भी होना लाजमी है। चश्मा मर्द और खवातीन बड़े शौक से पहनते हैं। चश्मे के स्टाइल पर काफी रश नजर आता है। ये गर्मी का जोर है, हमारा चश्मा बहुत ज्यादा बिक रहा है तो हमारा भी रोजगार का कोई इजाफा हो रहा है। डॉक्टर हजरात भी गर्मियों के मौसम में आवाम को चश्मा पहनने की हिदायत करते हैं। इंसान को चाहिए कि सफर के दौरान चश्मा लाजमी इस्तेमाल करे। कैमरामैन नासिर सोमरा के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। रंगीन चारपाइयाँ पंजाब की सकाफत का अहम जुज़्व हैं, जिन्हें खानेवाल के कारीगर निहायत मेहनत से तैयार करते हैं। ये चारपाइयाँ कैसे तैयार की जाते हैं, देखिए राशिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। लकड़ी को काटकर इसकी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में खराश तराश करने के बाद खूबसूरत चारपाई के रंगीन पायों में तब्दील करते ये हैं खानेवाल के कारीगर उमर हयात, जो कि न सिर्फ चारपाइयों के पाए तैयार कर रहे हैं बल्कि जनूबी पंजाब की सकाफत को भी जिंदा रखे हुए हैं। कारीगर कहता है कि आज भी लोग शादियों में बतौर तोहफा देने के लिए इन चारपाइयों को खरीदते हैं। शादी ब्याह के लिए लोग ले जाते हैं तो खानेवाल नहीं बल्कि मुल्तान और कई देगर शहर हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची, यहाँ तक लकड़ी का आर्डर, खास लकड़ी का चार बहुत लोग पसंद करते हैं। रंगीन चारपाई बनने के बाद सड़कों के किनारे फरोख्त के लिए रखी जाती है, जहां शहरी न सिर्फ घरों में इस्तेमाल करने के लिए बल्कि डेरेदारी और शादी के मौकों पर भी खरीदते दिखाई देते हैं। रंगीन चारपाइयाँ हम देरों पे इस्तेमाल करते हैं देहातों में, और शहरी माहौल में भी ये इस्तेमाल होनी चाहिए। ये सोने में आरामदेह और सुकूनदेह है। ये चारपाई हमारे बड़ों की सकाफत है, इसलिए मैं ये चारपाई लेने के लिए आया हूँ। यूँ तो चारपाई हर घर की जरूरत है, लेकिन रंगीन पाए वाली चारपाई घर हो या डेरा, इसमें खूबसूरत रंग भर देती है। रंगीन पाए से तैयार होने वाली चारपाई को जनूबी पंजाब की सकाफत भी समझा जाता है। यही वजह है कि कारीगर आज भी रंगीन पाए से तैयार चारपाइयाँ बना रहा है। कैमरा टीम कैमरा, राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से गुजरे 5 बरस बीत गए। मुनफरिद आवाज से कव्वाली को नई जिद्दत और जहद बख्शी यादें आज भी बंदाहों के दिलों में ताज़ा आवाज गूंज रही है। पाबंदियों और वैक्सीनेशन के असरात सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होते होते 1.7% तक आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 663 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मोहलक वायरस से सिर्फ 27 अमवात सामने आए। मुल्क में अमवात की तादाद 22,034 तक पहुंच चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 663 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,49,838 हो गई। पंजाब में 3,45,141, सिंध में 3,32,677, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,147, बलूचिस्तान में 26,673, गिलगित बल्तिस्तान में 5,827, इस्लामाबाद में 82,394, जबकि आजाद कश्मीर में 19,979 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 27 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,034 हो गई। पंजाब में 10
10,659, सिंध में 5,344, खैबर पख्तूनख्वा में 4,274, इस्लामाबाद में 775, बलूचिस्तान में 301, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आजाद कश्मीर में 573 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,41,87,441 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,017 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,94,352 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गंदत सिंध इमरान इस्माइल को नागा पर्वत रामा झील ने अपने शहर में जकड़ लिया। वीडियो पैगाम में कहा कि हम अमेरिका और यूरोप जाकर अपने पैसे जाया करते हैं, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है। नागा पर्वत के पास रामा झील की आप देख रहे हैं, पीछे बड़े रामा लेक है, यहाँ पर हम खड़े हैं। ये बड़ा एडवेंचरस टूर एक हमारा रहा है और यहाँ पर आने के लिए हमें पहले जीपी पर ट्रैक, फिर उसके बाद हमें घोड़ों पर यहाँ पे आना पड़ा। टेम्परेचर यहाँ पे फ्रीजिंग है, माइनस में होगा। यहाँ पे इंटरनेट चल नहीं रहा तो बता नहीं सकता क्या है, लेकिन मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि जो लोग यूरोप और अमेरिका जाते हैं, इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह अल्लाह ने हमें दी है और इतना ज़बरदस्त टूरिज्म स्पॉट है कि यहाँ पे आदमी स्विट्जरलैंड हो गया। अपने मुल्क में ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। मुझे तो लगता है कि शायद हमने ज़िंदगी ज़ाया की जो यहाँ पर नहीं आए। मेरी सबको एडवाइस है, तमाम फैमिली को, तमाम पाकिस्तानियों को, इंटरनेशनल वर्ल्ड में एडवाइस है कि अगर आपने खूबसूरती देखनी है और अल्लाह की शान देखनी है। और अब आपको छोड़े जा रहे हैं अयूब पार्क में, जो अपनी मिसाल आप है।